Recently, Mumbai police has lodged an FIR against Arnab Goswami, the editor-in-chief of Republic TV, for provoking enmity between communities and some other cases. We will try to understand what are those cases and under which section of IPC the case has been registered and what are its implications for him in future. But first we should know the background of the story. Actually, on the 15th of April, the lockdown was supposed to end, and so there was a rumors among some laborers in Mumbai, and they gathered near Bandra station. So there was a gathering around Bandra station, and they 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 thought that government has arranged some rail facility to transfer migrants to their native estates, but it was just a rumors. So police lathi charge there, but Republic TV gave it a communal angle. The laborers had assembled near the Bandra station, but they have given a color of communalism in this news also, and they reported that there was a huge gathering outside Bandra Mosque. Then they tried to give it another color that बांद्रा में देश विरोधियों का साजिश, अफवाह वाला आतंक क्यों, एंड अदर सच टाइप ऑफ नीड, किसके इशारे पे सड़क पर लोग, मस्जिद में कहाँ से आई भीड़. दीज आर द सब टाइप ऑफ communal angle. Later, a news website called Boom, this is a fact checker website, and they spoke to the Mumbai police commissioner, and they clarified that it was not a communal angle in this news. So a person called Irfan Abu Bakr Sheikh of Raza Academy of Bombay, they filed a criminal case against Arnab Goswami. The charge sheet has been filed. The case has been registered under the section 153, 153A, 295A, 500, 505.2, 511 and 120B of the Indian Penal Code. And you can see these are the charges against Arnab Goswami. So these are the cases registered against the Arnab Goswami. Now, from the legal perspective, we will try to understand what are those charges. The first charge under section 153, it is a giving provocation with intent to cause riot, यानी कि राइट करवाने के इंटेंशन से अगर किसी को प्रोवोक किया जाए, सो दिस इज अ वेरी सीरियस चार्जेस अंडर सेक्शन 153. और किसी को भी उकसाना, और इससे क्या होगा, बिकॉज द ऑफेंस ऑफ द राइटिंग टू बी कमिटेड. तो इस तरह के चार्जेस है सेक्शन 153 में. इसके लिए कितनी सज़ा का प्रावधान है ये जान लेते हैं. अगर प्रोवोक करने से अगर राइट होता है तब तो इसके लिए 1 साल की सज़ा या फाइन है या दोनों हो सकता है. अगर प्रोवोक किया गया है, कोई राइटिंग नहीं हुआ है, तब इस मामले में 6 महीने की सज़ा या फाइन दोनों का प्रावधान है. और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है. दोनों मामले में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बट इसमें किसी को होने से उनको बेल दिया जा सकता है. अगला मामला क्या है? अगला मामला है सेक्शन 153A का. 153A में क्या कहा गया है? इट इज़ अबाउट promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, and doing any acts which is prejudicial to the maintenance of harmony, यानी कि समाज में सौहार्द खराब हो, ऐसा कोई भी एक्टिविटी इज प्रिवेंटेड अंडर दिस एक्ट. अगर किसी क्लास के बीच में एनिमिटी बढ़ाया जाए तो इसके लिए सज़ा का प्रावधान है. 3 साल के लिए सज़ा दिया जा सकता है. अगर क्लासेस इन प्लेस ऑफ वर्शिप है तो इसमें 3 से 5 साल की इसमें सज़ा दिया जा सकता है. ये बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस है, इसलिए इसे कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कहा जाता है. और इसमें
इसमें बेल नहीं मिल सकता है, यानी कि दीज आर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। Second case is the second next charge is the section under section 295A। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कोई आदमी अगर डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट है, ये इंटेंडेड यानी कि कोशिश करे वो आउटरीच द रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग, उसके धर्म को इंसल्ट करके या उनके रिलीजियस बिलीफ को अगर इंसल्ट किया जाए, तो ऐसा जो भी चार्ज करेगा वो हो या तो बोलकर हो सकता है या लिख कर हो सकता है या किसी साइन के द्वारा हो सकता है, तो इसे इंसल्ट और अटेम्प्ट टू इंसल्ट द रिलीजन का उसके ऊपर चार्ज लगाया जा सकता है। और इसके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है? इसके लिए सज़ा का जो प्रावधान है वो 3 साल की सज़ा हो सकती है या फाइन भी हो सकती है, या इसमें उनके खिलाफ दोनों सज़ा का प्रावधान है। ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है, और इसमें भी उनके खिलाफ कोई बेल इशू नहीं होगा, यानी कि उनको बेल नहीं दिया जाएगा। अगला जो चार्ज है डैट इज अंडर द सेक्शन 500। सेक्शन 500 में किसके बारे में बात की गई है? इसमें सज़ा का प्रावधान है फॉर डिफेमेशन के लिए, यानी कि कोई अवमानना करे तो उसके लिए इसमें कम से कम 2 साल की सज़ा, फाइन या दोनों का प्रावधान है। यानी कि ये दोनों ये भी चार्जेस बहुत गंभीर चार्जेस हैं। अगला जो चार्ज है उनका अंडर सेक्शन 505 के तहत है एंड सेक्शन 505(2) के तहत है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें भी वही बात है, प्रोमोटिंग एनिमिटी हेट्रेड, यानी कि दो समुदाय के बीच में नफरत फैलाना। किस तरह से? थ्रू र्यूमर्स। देख सकते हैं आप यहाँ पे, whoever makes punishment publishes और circulate any statement, rumor और report, जिससे कि समाज में क्या हो? समाज में एनिमिटी बढ़े, नफ़रत का माहौल बढ़े, तो इसके लिए भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। ये भी आपका सेक्शन 505 जो है, इसमें भी ये भी नॉन बेलेबल ऑफेंस, 505 नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और यहाँ भी आपको 3 साल से 5 साल के लिए सज़ा हो सकता है अगर कोर्ट में ये सब प्रूफ हो जाए तब। इसके बाद जो ऑफेंस है वो है, वो जो केस दर्ज किया गया अंडर सेक्शन 511, और ये इंडियन पिनल कोड का सबसे लास्ट सेक्शन है। और इसमें कहा गया है कि ऐसा, इसमें पनिशमेंट का प्रावधान है, ऐसा कोई भी ऑफेंस जो हो कमिट किया जाए या जिसके लिए और किसी सेक्शन में प्रावधान ना हो, यानी कि समझ लीजिए कोई चोरी तो करेगा, चोरी करने के लिए तो सज़ा है, लेकिन मान लीजिए चोरी करने की, किसी ने चोरी किया है लेकिन वहाँ उसको सामान नहीं मिला, यानी कि मान लीजिए एक चोर आया, किसी के तिजोरी में उसने तिजोरी को तोड़ा, लेकिन वहाँ तो कोई सामान नहीं था, तो ये चोरी नहीं कहलाएगा, लेकिन ये अटेम्प्ट टू चोरी कहलाएगा। तो इसी के तरह की बहुत सारी जगह हैं कि जहाँ अटेम्प्ट के लिए कोई सज़ा का प्रावधान लिखा हुआ नहीं है, तो इन केसेज में इसका सहारा लिया जाता है और उसको सज़ा दिया जाता है सेक्शन 511 के तहत। उसके बाद जो केस है वो है अंडर सेक्शन 120B के तहत। 120B में जो बात कही गई है वो है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगर ये साबित हो जाए कोर्ट में कि ये अर्नब गोस्वामी ने ये एक एज ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत ये ऑफेंस को कमिट किया है, तो इसमें अच्छी खासी सज़ा का प्रावधान है, जैसे कि whoever is a party to, इसमें 6 महीने की सज़ा है, लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट है। तो ये सब सज़ा है जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पुलिस ने FIR में दर्ज किया है। तो दिस वाज जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लीगल अवेयरनेस दिस वीडियो वाज क्रिएटेड, सो वी रिमेन aware about our laws and rights. Thank you.